Hello, good morning to all my dear students. I welcome you once again in the class of accounts standard 11th. We are continuing with chapter number 9, ledger posting. In our last video, I have gone through with question number 4, in which you are just supposed to state which account has its debit or credit balance as per their nature of account. Now, today let us go through with question number 5. Before that, if you have not passed the journal entries for question number 5, I request you to do the same. आप journal entries record करके रखेंगे. From that journal entries, I am going to explain you how to post those entries in ledgers. Now let us start with question number 5 from your textbook on page number 244. In the books of Sri Katra, write journal entries for the following transactions, draw necessary ledgers or accounts in the ledger and post them accordingly. Now these are the following transactions which are given below to you people, and from these transactions you are supposed to write down journal entries. Now already the chapter of journal entries we have covered, so I am not going to teach you how we are supposed to post them. This will become your homework, and for today's topic, that is your ledger posting, I am going to start with that directly. I'll just show like this way. Question number 5 on page number 244, Journal of Sri Katra. Like this way, all the journal entries I have written. Now from these journal entries, we are supposed to do the ledger posting. Now the first and the foremost thing for this journal entries is go on reading the transactions and pass the journal entries. As and when you have completed with all 8 transactions given in question number 5, हम अभी क्या करेंगे, हमें काउंटिंग करना होगा कि how many different types of ledgers are there. जो भी नया लेजर आता जाएगा उसे हम नंबरिंग करते जाएंगे और जो रिपीट हो रहे होंगे उन्हें हम छोड़ देंगे. सो कैश नंबर 1, कैपिटल नंबर 2, बैंक विल बी 3, कैश ऑलरेडी यहां पर आ गया है तो हम वापस इसको नंबरिंग नहीं करेंगे. परचेज विल बी 4, अगेन कैश इज देयर. फर्नीचर विल बी 5, अजमल फर्नीचर नंबर 6, कनु भाईज अकाउंट विल बी 7, बैंक आ गया है. अगेन देयर इज बैंक. नेक्स्ट इज अलाउंस. अलाउंस विल बिकम योर 8th. राजू भाई 9 नंबर. कैश डन है. सेल्स इज योर 10 नंबर. रमेश भाई विल बी योर 11. सेल्स आपका 10 नंबर यहां पर आ गया है, सो वी विल लीव सेल्स. मूविंग फर्दर, सैलरी विल बी योर 12th नंबर. सो लाइक दिस वे, ये नंबरिंग से आपको क्या पता चला कि इन ऑल टोटल आपके 12 लेजर्स आपको बनाने हैं. इन माई थियरी पोर्शन आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कि लेजर पोस्टिंग का फॉर्मेट कैसा होता है और हमें अब वो सीखना है कि हम लेजर पोस्टिंग करेंगे कैसे. सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर जर्नल एंट्रीज हमें नंबरिंग करना होगा कि कौन से आपके लेजर्स हमें बनाने हैं. सो नाउ दीज आर दी लेजर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 5. हेडिंग रहेगा लेजर ऑफ श्री कात्रा. सबसे पहला कैश अकाउंट. फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, लेफ्ट हैंड साइड विल बी योर डेबिट, राइट हैंड साइड विल बी योर क्रेडिट. डेट, पर्टिकुलर्स, यहां पर आता है जेएफ, जर्नल फोलियो नंबर, अमाउंट इन रुपीज. On the another side also it remains the same, date, particulars, JF, amount in rupees. जो भी आपने यहाँ पे नंबरिंग किया था वैसे करके आप करते जाएंगे. और फर्स्ट इज कैश अकाउंट. सो सबसे पहले मैंने कैश अकाउंट यहाँ पर बनाया है. नेक्स्ट इज योर कैपिटल. सो
Next account is my capital, then it is bank account, then purchase account, furniture account, Ajmal furniture account, Kanu Bhai's account. And next is allowance account, Raju Bhai's account, sales account, Ramesh Bhai's account and salary account. ऐसे करके हम एक ही बार डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट जो आपका न्यू पेज होगा उसमें एक बार बनाकर नीचे सारे आप लेजर्स ड्रॉ कर सकते हो. ऑन माई फर्स्ट साइड ऑल्सो आई हैव डन द सेम. एक ही बार मैंने डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिखा है, बाकी सारे लेजर्स आप डायरेक्टली ऐसे शो कर सकते हो. नाउ हाउ वी आर सपोज टू पोस्ट ऑल दीज जर्नल एंट्रीज इन लेजर, लेट अस स्टार्ट अप विथ दैट. लेजर पोस्टिंग के लिए एक बात जरूर याद रखेंगे, सेम अकाउंट, सेम अमाउंट, different name. I am repeating it again. Same account, same amount, different name. अब ये क्या है वो अपन स्टार्ट करते हैं. आपका फर्स्ट जर्नल एंट्री जो है that is cash account debit to capital account. सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कौन सा अकाउंट है. कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट है. ओके, सो मैंने यहां पर कैश अकाउंट पहले पसंद किया है. कैश अकाउंट कौन सी बाजू है? डेबिट. सो सेम साइड डेबिट, सेम अकाउंट. मैंने जर्नल एंट्री से कौन सा अकाउंट उठाया है? कैश अकाउंट. सो यहां पे भी मैं कौन सा उठा रहा हूं? कैश. सेम साइड, कौन सा साइड है? डेबिट. डिफरेंट नेम, यहां पे लिखूंगा क्या मैं? टू कैपिटल अकाउंट. कितना है? 3,30,000. सो यहां पे अमाउंट के कॉलम में 3,30,000. सो सेम अकाउंट, सेम साइड, सेम अमाउंट, डिफरेंट नेम. डिफरेंट नेम कौन सा? उसके अलावा जो आपको यहां पर गिवन है. इज दिस क्लियर? ये डेबिट साइड हुआ. अब अपन बात करेंगे कैपिटल के लिए. कौन सा अकाउंट चूज कर रहे हैं अपन? कैपिटल अकाउंट. सो यहां पे भी कैपिटल अकाउंट. कैपिटल को कौन सा नेचर यहां पे दिखाया है? क्रेडिट. सो हम कौन से साइड में रिकॉर्ड करेंगे? ऑन क्रेडिट साइड. ओके, सेम अकाउंट, सेम साइड. जर्नल एंट्री में देखो कैपिटल कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड. तो हम भी यहां पर लिखेंगे सेम अमाउंट लिखेंगे बट डिफरेंट नेम आएगा. सो नेम कौन सा आएगा यहां पर? बाय कैश अकाउंट 3,30,000. इज दिस क्लियर? ओके, सो सेम अकाउंट, सेम साइड, सेम अमाउंट विथ डिफरेंट नेम. ओके, मूविंग फर्दर, सेम है. फर्स्ट ही डेट है. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बैंक अकाउंट, अब आप कौन सा अकाउंट पसंद कर रहे हैं? बैंक अकाउंट. सो आप यहां पर लेजर्स में भी कौन सा अकाउंट लेंगे? बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट को कौन सा साइड यहां पर दिखाया है जर्नल एंट्री में? डेबिट. सो हम भी कौन सा लिखेंगे? डेबिट. डिफरेंट नेम या ऑपोजिट नेम कौन सा है यहां पर? कैश है. सो बैंक अकाउंट, डेबिट इज द साइड, टू कैश अकाउंट. ओके, अमाउंट सेम 2,30,000. ओके, नेक्स्ट अकाउंट चूज कर रहे हैं कैश अकाउंट. कैश अकाउंट कौन सी साइड है आपका? क्रेडिट साइड. कैश अकाउंट, साइड क्रेडिट, ऑपोजिट नेम. कौन सा नेम आएगा यहां पर? बैंक. तो क्रेडिट साइड लिखने के लिए आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 2,30,000. Is this clear? Moving further on second date. क्या दिया हुआ है? परचेज अकाउंट डेबिट. परचेज अकाउंट आप पसंद कौन सा करेंगे? परचेज अकाउंट. परचेज अकाउंट में कौन सा साइड? सेम साइड, डेबिट साइड, क्योंकि जर्नल एंट्री में भी परचेज को हमने क्या किया है? डेबिट किया है. सो परचेज में यहां पर डेबिट और
ऑपोजिट नेम, नेम क्या आएगा यहां पर? टू कैश। सो परचेज अकाउंट में यहां पे आप लिखेंगे टू कैश 85,000। इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट कैश अकाउंट। यहां पर कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। आप पहले कैश अकाउंट उठाएंगे, साइड पहले डिसाइड करेंगे कि डेबिट साइड की क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड, इट्स नॉट माय ओपिनियन, ये जहां पर कैश क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे, कैश डेबिट होता तो हम डेबिट करेंगे, मेरी मर्जी यहां पर नहीं चलेगी। ओके, सो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट यहां पे क्रेडिट हो रहा है, हम कौन सा साइड पसंद करेंगे? क्रेडिट साइड पसंद करेंगे। ऑपोजिट नेम लिखेंगे, ऑपोजिट नेम क्या होगा इसका? बाय परचेज अकाउंट। कितना? 85,000। Okay, I hope you people are understanding. Next is furniture account debit. So सबसे पहले आप क्या फाइनलाइज करेंगे? अकाउंट फाइनलाइज करेंगे। और डेबिट है तो हमें जो भी लिखना होगा वो यहां पर लिखेंगे। और ऑपोजिट नेम, फर्नीचर के सामने कौन सा नेम है? अजमल फर्नीचर मार्ट। तो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड टू क्या लिखेंगे आप? अजमल फर्नीचर मार्ट। ओके, हाउ मच? कितना आएगा अजमल फर्नीचर मार्ट में? 11,500। वाइज वर्सा पोस्टिंग करना बाकी है अपन को। अजमल को क्या किया है आपने? क्रेडिट। अजमल को क्रेडिट किया है तो अजमल अकाउंट पहले चूज किया आपने, फिर साइड चूज करेंगे, कौन सा साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। और क्रेडिट साइड में ऑपोजिट नेम बाय फर्नीचर अकाउंट 11,500। इज दिस क्लियर? मूविंग फर्दर, कन्नू भाईज अकाउंट डेबिट। अब कन्नू भाई के अकाउंट को आपको क्या करना है? डेबिट करना है। तो पहले तो कन्नू भाई ढूंढेंगे आप। कन्नू भाई में कौन सी साइड रिकॉर्ड करना है? डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। और ऑपोजिट नेम आएगा, नेम कौन सा है आपका यहां पर? बैंक। सो कन्नू भाई डेबिट साइड यहां पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट एंड द अमाउंट इज 8,000। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका नेक्स्ट कौन सा है? बैंक अकाउंट है। ओके, बैंक अकाउंट को क्या किया है आपने? क्रेडिट किया है। सो हम चूज करेंगे पहले बैंक अकाउंट, फिर साइड चूज करेंगे, वो क्रेडिट साइड होगा। और ऑपोजिट नेम होगा, बैंक के ऑपोजिट में कौन है? कन्नू भाई है। सो यहां पे अपन लिखेंगे बाय कन्नू भाईज अकाउंट। कितना आएगा? 8,000। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। कौन सा है? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट पहले पसंद करेंगे? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपने ले लिया। बैंक अकाउंट में डेबिट यानी कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे? टू साइड, दैट इज डेबिट साइड 2। सो बैंक अकाउंट डेबिट, तो आपने बैंक अकाउंट ढूंढा, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ऑपोजिट नेम, नेम किसका आएगा? डेबिट वाले का नहीं, क्रेडिट वाले का। किसका? राजू भाई का। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू राजू भाईज अकाउंट। और मैंने आपको यह भी बोला था सेम अमाउंट, सेम किसका? जिसका अकाउंट है। अकाउंट का अमाउंट कितना है? 7,500। सो हियर यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि मैं राजू भाई को लिख रहा हूं तो 7,800 लिख दूं। नो, तभी मैंने आप लोगों को पहले वो लाइन बताई थी, सेम अकाउंट, सेम अमाउंट, सेम साइड, ऑपोजिट नेम। बैंक अकाउंट डेबिट साइड। सो पहले क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट साइड, सेम अमाउंट। किसका सेम अमाउंट? जिसका अकाउंट है। किसका अकाउंट है? बैंक का। तो 7,500 आप देख रहे हैं 7,500। और ऑपोजिट नेम, तो ऑपोजिट कौन सा होगा? क्रेडिट नाम। तो
राजू भाईज अकाउंट। नेक्स्ट इज अलाउंस अकाउंट। सो अभी आप पहले अलाउंस अकाउंट देखेंगे। अलाउंस अकाउंट में डेबिट साइड आपको रिकॉर्ड करना है, ऑपोजिट नेम आएगा। अब अलाउंस के सामने क्रेडिट क्या है? राजू भाई। तो यहां पे आप लिखेंगे वापस से टू राजू भाईज अकाउंट। सेम अमाउंट, अमाउंट किसका? अलाउंस वाले का। कितना है? 300। ओके। नेक्स्ट अभी आपको क्या करना है? राजू भाई को देखना है। राजू भाई का क्या हो रहा है? अकाउंट क्रेडिट। सो राजू भाई अकाउंट पहले पसंद किया, फिर डेबिट साइड की क्रेडिट साइड। सो आंसर इज क्रेडिट साइड, जस्ट बिकॉज की आपका यहां पे राजू भाई क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। ऑपोजिट नेम, तो नेम में ये दोनों नेम आपके आएंगे। ओके। सो यहां पे आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, दूसरा आएगा बाय अलाउंस अकाउंट। ओके। अब अमाउंट क्या आएगा? बैंक में, बैंक के सामने वाला, बैंक के सामने क्या है? 7500। एंड अलाउंस के सामने क्या है? 300। सो ऐसे करके टोटल मेरा राजू भाई जो क्रेडिट 7800 से होना चाहिए था वो हो रहा है। यहां पर हम दो अलग अलग नाम लिख के एक ही में 78 नहीं लिखेंगे। प्लीज स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हियर। मैंने आप लोगों को बताया यहां पर कि बैंक में आप राजू भाई लिख रहे हैं, बैंक का अमाउंट आया 7500। फिर आपने अलाउंस देखा, अलाउंस में राजू भाई, तो अलाउंस का अमाउंट 300 देखा। अब राजू भाई में ऑपोजिट नाम आएंगे। राजू भाई क्रेडिट है तो ऑपोजिट कौन कौन है? बैंक एंड अलाउंस। तो बैंक एंड अलाउंस करके आपने यहां पे देखा, तो बैंक में कितना था? 75 एंड अलाउंस में कितना था? 300। ऐसे दो बाइफर्केशंस में पूरा 7800 आपका क्रेडिट हो रहा है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग। नेक्स्ट इज कैश अकाउंट डेबिट। सो आप कैश अकाउंट पहले पसंद करेंगे। कैश अकाउंट में डेबिट साइड क्या लिख रहे हैं आप? टू सेल्स, ऑपोजिट नेम आएगा। सो टू सेल्स अकाउंट। कितना है अमाउंट? 15,000। सो 15,000। अब आप क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट। ओके। सेल्स अकाउंट कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। सेम अकाउंट सेम साइड, ऑपोजिट नेम क्या आएगा यहां पे? बाय कैश अकाउंट 15,000। ओके। नेक्स्ट रमेश भाईज अकाउंट डेबिट। रमेश भाई के अकाउंट को क्या करना है? आपको डेबिट करना है। सो रमेश भाई का अकाउंट देखेंगे, डेबिट साइड देखेंगे, और रमेश भाई में क्या कर रहे हैं आप? ऑपोजिट नेम सेल्स। तो यहां पे आप रमेश भाई के अकाउंट में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट विथ अमाउंट 75,000। ओके। अभी सेल्स अकाउंट देखेंगे। सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। सो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ऑपोजिट नेम में क्या आएगा? सेल्स के सामने ऑपोजिट क्या है? रमेश भाई, बाय रमेश भाईज अकाउंट विथ 75,000। नेक्स्ट इज सैलरी अकाउंट डेबिट। सो सबसे पहले सैलरी ढूंढो, सैलरी मिला। अब डेबिट की क्रेडिट, वो डेबिट दिया हुआ है जर्नल एंट्री में तो हम यहां पर डेबिट करेंगे। ऑपोजिट नेम में आएगा टू कैश। यहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट 60,200। इज दिस क्लियर? अब नेक्स्ट इफेक्ट डालेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट आपका यहां पर दिया हुआ है। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। आप पहले कैश अकाउंट पसंद करेंगे। कैश अकाउंट मिला तो क्रेडिट साइड देखेंगे। क्रेडिट साइड में ऑपोजिट नाम डालेंगे बाय सैलरी अकाउंट 60,200। सो लाइक दिस वे हमने क्या किया? अवेलेबल हमारी जो जर्नल एंट्रीज थी उसमें से हमने लेजर पोस्टिंग किया। कैश से लेके सारे हमारे जो भी
लेजर्स थे वो हमने प्रिपेयर किए और उसके बाद हमने उनके अंदर सबका लेजर पोस्टिंग किया. सो दिस इज नथिंग बट लेजर posting. Now your today's homework is illustration number 1, which is as good as question number 5, which I have taught you right now. So both these questions will be in your homework. I hope that you people have understood the very first and basic question of ledger posting. Thank you.